Good morning, friends. I think we completed one problem on consignment yesterday, right? We solved one problem. Third problem we solved, and the interesting part in that problem was calculation of commission. DVD players बेचे थे और फिर वो commission का calculation, where formation of equation was very interesting. और वो अगर जम गया तो बाकी सम तो ओके था, बाकी ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था उसमें कुछ भी. तो हमने एक प्रॉब्लम कल सॉल्व किया है. Before we go to the next problem, a quick revision of what is completed till now in consignment. जल्दी से एक quick revision 2 मिनट का करते हैं. We understood first what is consignment. It is a relationship between principal and agent, which is called as consignment arrangement. So the person sending the goods is the principal, called as consignor. The person to whom the goods are sent is an agent, called as consignee. Consignor sends goods to consignee. Consignee receives the goods on behalf of consignor, and then consignee sells the goods to the ultimate customer on behalf of consignor. In this case, when the goods are sent by consignor to the consignee, it is not transfer of ownership, it is only transfer of possession. Whereas when the goods are sold by the consignee to the ultimate customer, ownership gets transferred directly from the seller to the buyer. Seller means consignor to the buyer. So consignee's role is just as a middleman, agent, media, जो चैनल है एक जो कस्टमर को और कंसाइनर को अल्टीमेट सेलर को लिंक कर रहा है. Obviously nothing comes for free, so for providing agency services, consignee will get commission from the consignor. This is what consignment arrangement is, which we spoke about. We also understood the distinction between sale and consignment. Important part was with relation to transfer of ownership. When the goods are sold, ownership gets transferred from the seller to the buyer. But when the goods are consigned, it is not transfer of ownership, it is only transfer of possession. और एक important point जो discuss किया था वो ये था कि in case of sale transaction, sales invoice is prepared. In case of consignment goods, pro forma invoice is prepared. Pro forma invoice will give details of goods sent on consignment, its quantity, its details, and value of such goods. Value of goods mentioned in pro forma invoice is called as IP. This IP may be either equal to cost or it may be more than cost, inflated cost. If IP is equal to cost, there is no question of loading. But if IP is greater than cost, it is at inflated cost, then it will lead to loading. Mathematically, loading is equal to IP minus cost. फिर हमने वो अलग अलग mathematical proportion समझे. When loading is 1/3 of cost, it is 1/4 of IP. If it is 1/5 of IP, it is 1/4 of cost. If it is 1/10 of cost, it is 1/11 of IP. If it is 1/10 of IP, it is 1/9 of cost. ये सारे proportions अपने समझे. Then we spoke about the commission payable to the consignee. It can be given under 3 different heads: normal, special, del credere. Normal commission is paid at a certain percentage of sales effected by the consignee. Special commission is paid as a incentive to the consignee so that he will realize surplus price. So if he realizes certain surplus price over and above a particular level, he will be entitled to get special commission over and above normal commission. Normal commission के साथ साथ उसको special commission भी मिलेगा अगर वो ज़्यादा price realize करता है तो. Del credere commission is the commission paid by consignor to the consignee to cover the risk of bad debts. So bear it in mind that if del credere commission is paid, the loss of bad debts will be borne by consignee. If it is not paid, then the loss of bad debts will be borne by consignor only. Then after this we talked about account sale, very important periodical statement rendered by consignee to the consignor. It provides the details like goods sold by consignee, expenses paid by consignee, commission entitled by consignee, amount due by consignee to the consignor. ये डॉक्यूमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इस डॉक्यूमेंट में जो डिटेल्स दिए जाएंगे वो डिटेल्स के बेसिस पे ही अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर विल बी पास्ड. कि तो ट्रांजैक्शंस कर कौन रहा है? ये सारे कंसाइनी कर रहा है, बट है किसके ट्रांजैक्शन? कंसाइनर के. तो कंसाइनर के बुक्स में उसका अकाउंटिंग तो होना पड़ेगा ना, और उसके लिए फिर वो सारे ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स उसको मिलने पड़ेंगे, और वो ट्रांजैक्शन के डिटेल्स अकाउंट सेल के थ्रू उसको मिलते हैं. तो अकाउंट सेल बाय दैट वे ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. फिर हमने रिकरिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस की बात की थी.
expenses which are incurred before the goods reach consignees go down are non-recurring, and expenses which are incurred after the goods reach consignees go down are recurring. Recurring expenses are paid by consignee only, whereas non-recurring expenses are paid by consignor as well as consignee. नॉन रिकरिंग कभी कभार होने वाले खर्चे, रिकरिंग रेगुलर बेसिस पे होने वाले खर्चे. और एक डिस्टिंक्शन हमने इसलिए सीखा कि इन वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग abnormal loss. In valuation of abnormal loss, we only and only consider non-recurring expenses proportionately. We do not consider recurring expenses. कल हमने डिटेल में सीखा भी है कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है. कल प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसमें हमने वैल्यूएशन किया भी है. तो आपने देखा रहेगा कि वी ओनली कंसिडर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, वी डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिकरिंग एक्सपेंसेस, और इसलिए वो डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट था. हमने जर्नल एंट्रीज डिस्कस किए कल, एंड जर्नल एंट्रीज डिस्कस करके एक प्रॉब्लम हमने उसके ऊपर सॉल्व किया था. आज और एक प्रॉब्लम पहले सॉल्व करते हैं, एंड देन वी विल गो इनटू लॉसेस. वी विल गो इनटू लॉसेस मतलब वी विल बी स्टडीइंग लॉस. सेकेंड सम, page number 12. Mr. Divik of Jaipur purchased 5,000 pieces of sarees at rupees 500 per saree. Out of these, 3,000 sarees were sent on consignment to Mr. Manoj of Pilani at the selling price of rupees 600 per saree. Consigner paid 30,000 for packing and freight. Mr. Manoj sold 2,500 sarees at rupees 625 per saree and incurred rupees 10,000 for selling expenses and remitted rupees 5 lakhs to Jaipur on account of Mr. Divik. Mr. Manoj is entitled to a commission of 5% on total sales plus a further commission at 20% of surplus price realized over the invoice price. You are required to prepare consignment account in the books of Mr. Divik and Mr. Divik's account in the books of agent Mr. Manoj. इस प्रॉब्लम में अपने को कंसाइनर के बुक्स का कंसाइनमेंट अकाउंट पूछा है और कंसाइनी के बुक्स का कंसाइनर अकाउंट पूछा है. तो दोनों के बुक्स के एंट्रीज अपने को आने चाहिए, और इसीलिए कल जब हमने एंट्रीज लिखे तो मैंने दोनों के बुक्स के एंट्रीज तुमको लिखा के दिए थे कि एग्जाम में कब कैसे क्वेश्चन क्या घुमा फिरा क्या ऐसे है पूछे, यू नेवर नो. तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल. सारी चीजें तुमको आनी चाहिए. यहाँ पे दोनों के भी बुक्स के एंट्रीज अपने को समझने हैं और लिखने हैं. चलो, problem number 2, page number 12. In the books of Mr. Divik, consignment account. More than half page.
In the books of कंसाइनी कौन है? In the books of Mr. Manoj, Devik account. This is just for 6-7 lines. Ready? Mr. Divik of Jaipur purchased 5,000 pieces of sarees at 500 per saree. बेटा सारीज परचेस किए कंसाइनर ने, उसकी एंट्री कंसाइनमेंट में नहीं आएगी, ये उसके परचेसेस हो गए. अगर ट्रेडिंग अकाउंट पूछते दिविक का तो हम उसमें परचेसेस लेते, वो ट्रेडिंग अकाउंट पूछा नहीं है. Out of these, 3,000 sarees were sent on consignment to Mr. Manoj of Pilani at a selling price of rupees 600 per saree. 3,000 sarees are sent. What is the accounting entry for goods sent on consignment? Consignment account debit to goods sent on consignment account. So, debit side of consignment account. Two goods sent on consignment account. How many sarees are sent? 3,000 sarees. Even though cost is rupees 500, those are sent at the rate of rupees 600. 600 रुपए में भेजे, जबकि 500 रुपए उनका कॉस्ट है. इसका मतलब ये है कि those are sent at a loading of 100 rupees per saree. कितना आता है ये? 18 lakhs. But now this 18 lakhs amount is inclusive of loading, because that is calculated on the basis of rupees 600 per saree, whereas cost is only 500. So 100 rupees per saree is the loading, reversal of loading entry. Goods sent on consignment account debit to consignment account. Credit side by goods sent on consignment account, bracket 3,000 sarees at the rate of it will be 3 lakhs. 3 lakhs rupees. Then consignor paid 30,000 for packing and freight. Entry for expenses paid by consignor. Consignment account debit to cash or bank account. So to cash oblique bank account, bracket packing and freight, how much is it?
Mr. Manoj sold 2,500 sarees at rupees 625 per saree. Entry for goods sold by consignee. Consignee's account debit to consignment account. Consignment account credit side by Manoj account. Sale of 2,500 sarees at the rate of बोलो बेटा 1862 1562 पक्का? मनोज अकाउंट बनाया नहीं है, बोला नहीं है इसलिए, लेकिन मनोज के बुक्स में दिविक अकाउंट है. अब कंसाइनी ने गुड्स बेचे कंसाइनर के बिहाफ पे. ध्यान से सुनना, नॉर्मल केस में सेल्स की एंट्री हम करते हैं कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अब यहां पे ये सेल उसका खुद का है क्या कंसाइनी का? उसने किसके बिहाफ पे किया? कंसाइनर के बिहाफ पे, दिविक के बिहाफ पे. तो ही विल क्रेडिट इट टू दिविक. उसके बुक्स में एंट्री होगी, मनोज के बुक्स में, कंसाइनी के बुक्स में कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू दिविक अकाउंट. तो हम लोग कंसाइनी के बुक्स में भी एंट्री कर रहे हैं, कंसाइनी के बुक्स में, मनोज के बुक्स में ब्रैकेट sale of 2,500 sarees. $1,562 $500. हो गया? What will be the entry for selling expenses paid by Manoj? Consignment account debit to Manoj account. Consignment account debit side to Manoj account bracket selling expenses. कितने हैं सेलिंग एक्सपेंसेस? 10,000. मनोज खुद उसके बुक्स में क्या एंट्री करेगा? उसने एक्सपेंसेस पे किए ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर. कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. गो टू consignors account in the books of consignee, that is Divik account in the books of Manoj, to सेलिंग एक्सपेंसेस. कितने? 10,000 रुपीज. बरोबर. रेमिटेड 5 lakhs टू जयपुर ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टर दिविक. 5 लाख रुपए एडवांस भी भेजा है. पहले तो आप मेरे को कंसाइनर के बुक्स में एंट्री बताओ. एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट. बट हमने कंसाइनी का अकाउंट तो बनाया ही नहीं है, बोला ही नहीं है. तो कंसाइनी के बुक्स में क्या एंट्री होगी? ही हैज गिवन एडवांस टू कंसाइनर. कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. सो डेबिट साइड ऑफ दिविक अकाउंट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. You may write in bracket advance. कितना दिया एडवांस? 5 लाख रुपए. Mr. Manoj is entitled to a commission of 5% on total sales plus a further commission of 20% of surplus price realized over the invoice price. टोटल सेल्स के 5% तो मिलेगा ही कमीशन. उसके अलावा इनवॉइस प्राइस से जितना ज्यादा रियलाइज हुआ वैल्यू, वो सरप्लस प्राइस का 20% है. तो नॉर्मल प्लस स्पेशल दोनों कमीशन है. यहां पे वर्किंग करना पड़ेगा.
working notes. Calculation of commission payable to Mr. Manoj. Right hand side corner, rupees. Sales value of sarees sold. कितने में बेचे रहे? सेल्स वैल्यू ये टोटल 1560 to 500 बराबर ना, लेस invoice price of sarees sold. ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाएंगे नेक्स्ट लाइन. 2500 साड़ियां बेची है, इनका इनवॉइस प्राइस पर साड़ी कितना था? 600 रुपए. तो बेटा जो साड़ियां बेची, जो बिक गई है साड़ियां, उनका इनवॉइस प्राइस कितना था? 2500 इंटू 600 कितना आता है? 15 लाख आ रहा है पक्का? क्या कर रहे समझो आप लोग कि 15,62,500 में बेची है साड़ियां, बट जो बेची है उनका इनवॉइस प्राइस कितना था? 15 लाख था. तो सरप्लस प्राइस कितना? देयरफॉर सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड 62,500. प्रॉब्लम में क्लियरली लिखा हुआ है. सरप्लस प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे? ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस. ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस बोलते जितनी साड़ियां बेची उनका इनवॉइस प्राइस देखो कितना है, कितने में बेचा है वो देखो, कितना सरप्लस प्राइस रियलाइज हुआ है वो देखो. तो बेचे कितने में? एक्चुअल सेल्स वैल्यू 1562,500, जबकि उनकी इनवॉइस प्राइस कितनी आ रही है? 15 lakhs. सो सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड इज 62,500. एनी प्रॉब्लम इन दिस? अब कमीशन कैलकुलेट करना बहुत आसान है. कमीशन इज इक्वल टू look at the screen, 5% on rupees 1562,500. टोटल सेल्स के 5% है ना, एंड 20% on surplus price. So 20% of 62,500. करेक्ट है? 5% कितना आता है? 78 पक्का ना? एंड सरप्लस प्राइस का 20%. सो व्हाट विल बी द टोटल कमीशन? 90,625 रुपीज का टोटल कमीशन है. आया? चलो बोलो एंट्री मेरे को. कमीशन पेएबल टू मनोज, कंसाइनमेंट टू मनोज, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू मनोज अकाउंट, ब्रैकेट कमीशन. हाउ मच इज इट? 90,625.
90,625. मनोज खुद क्या एंट्री करेगा? इट इज रिसीवेबल फ्रॉम दिविक एंड इट इज इनकम फॉर मनोज. सो व्हाट एंट्री ही विल पास? नहीं नहीं, मिला नहीं है, रिसीवेबल है. कभी पे नहीं करते कमीशन, वो डायरेक्ट एडजस्ट होता है सेल प्रोसीड्स में. इट इज रिसीवेबल फ्रॉम दिविक. कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, उसके लिए इनकम है तो वो कमीशन को क्रेडिट करेगा. एंड इट इज रिसीवेबल फ्रॉम कंसाइनर. सो कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट. सो टू कमीशन अकाउंट दिविक के डेबिट में. $90,625. 90,625. बाकी सारे ट्रांजैक्शंस तो हो गए. क्या बच गया? स्टॉक वैल्यूएशन, वर्किंग नोट नंबर 2. Valuation of consignment stock. Goods are sent at cost or at IP? IP पे भेजे हुए, कॉस्ट पे नहीं भेजे. तो पहले वैल्यूएशन IP पे ही होगा और फिर लोडिंग रिवर्स करेंगे. सो IP ऑफ sarees lying unsold विथ मनोज. कितनी साड़ियां भेजी थी? 3,000. कितनी बेची थी? तो कितनी बच गई? 500 sarees. एंड व्हाट इज द IP? एट द रेट ऑफ ₹600 पर साड़ी. बोलो 3 lakhs. बरोबर. एड proportionate non-recurring expenses under that number 1. Consignors expenses. Consignors expenses. चेक करो बेटा कंसाइनर ने क्या एक्सपेंसेस किए हुए. व्हाट आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर? 30,000. बट वो 30,000 कितने साड़ीज पे? सो 30,000 डिवाइडेड बाय 3,000 साड़ियां भेजी थी ना टोटल. सो डिवाइडेड बाय 3,000 साड़ीज. इंटू बोलो बेटा. इनर कॉलम 5,000. एड नंबर 2. कंसाइनीज एक्सपेंसेस. कंसाइनीज एक्सपेंसेस. कंसाइनी दोनों भी एक्सपेंस करता है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग. तो प्रॉब्लम में क्या दिया है वो देखना पड़ेगा अपने को. क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में? सेलिंग दी है ना, सिर्फ सेलिंग तो रिकरिंग हो गए. तो फिर वो आएंगे क्या? और कुछ है नहीं तो नील. आउटर कॉलम 5,000. Therefore value of consignment stock will be 3,05,000. 3,05,000.
What is the journal entry? Consignment stock account debit to consignment account. By consignment stock account 3,05,000 bracket refer working note number 2. लेकिन बेटा ये एक्चुअल कॉस्ट है कि इन्फ्लेटेड है? इन्फ्लेटेड है। इसमें तुमने साड़ी का वैल्यू जो है 600 रुपये पर साड़ी लिया हुआ है बेसिक कॉस्ट, जबकि बेसिक कॉस्ट तो 500 है, तो 100 रुपीज पर साड़ी का लोडिंग है ना, तो वो रिवर्स करना पड़ेगा. एंड व्हाट एंट्री वी डिस्कस यस्टरडे अंडरस्टूड फॉर रिवर्सल ऑफ लोडिंग ऑन स्टॉक? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, डेबिट साइड टू स्टॉक रिजर्व. ब्रैकेट 500 साड़ीज, 500 साड़ी थे ना स्टॉक में, एंड पर साड़ी कितना लोडिंग है बेटा? So at the rate of rupees 100, how much that comes to? तो 50,000 रुपए का लोडिंग क्लोजिंग स्टॉक में है, तो वो रिवर्स कर दिया मैंने. Do we pass any entry in the books of consignee for consignment stock? कंसाइनमेंट स्टॉक की एंट्री कंसाइनी के बुक्स में क्यों आएगी? फिनिश्ड. क्लोज दिस अकाउंट, गेट द प्रॉफिट और लॉस. To profit and loss account, asterisk mark balancing figure. $21,67,500 is the total. Balancing figure will be 1,86,000. 88,000. 186,875. सबका आया 186,875. कॉपी मत करो, कैलकुलेट करो सब लोग. फिर मनोज के बुक्स में दिव्य का अकाउंट है. चलो फाइनल सेटलमेंट में कितना पे करना है ढूंढो. टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर, ब्रैकेट फाइनल सेटलमेंट. बोलो बेटा. 96,000. 9,61,875 आया. सबका आया? अब हेडिंग लिखो बेटा. abnormal loss.
abnormal loss. पहले हम बात करेंगे लॉस क्या होता है, उसके दो कैटेगरी जो है नॉर्मल एबनॉर्मल, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पास जाते हैं। अच्छे से ध्यान दो, बाद में लिखा के देता हूं मैं तुमको, दोनों एक साथ नहीं बताऊंगा, मतलब लिखा के नहीं दूंगा, नॉर्मल और एबनॉर्मल कंफ्यूजन होता है थोड़ा। पहले समझ लेते पूरा, फिर एक लॉस की ट्रीटमेंट समझते। लॉस इज कॉमन इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस। गुड्स का लॉस होना ये कॉमन बात है, कोई ना कोई कारण से लॉस हो सकता है बिजनेस में, वी कैन ट्राई टू अवॉइड इट, बट लॉसेस होते तो है। किसी कारण से डैमेज हो गया, चोरी हो गया, आग लग गई, जल गए, दीज आर ऑल कॉमन रीजंस ऑफ लॉस ऑफ गुड्स इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस। ये जो लॉसेस है, इन लॉसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। इसलिए डिवाइड किया गया है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज डिफरेंट फॉर बोथ टाइप्स ऑफ लॉसेस। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस, इन दोनों के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग है। अगर समझो दोनों लॉसेस के लिए ना सेम ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता तो फिर दो टाइप करते ही क्यों, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल? फिर तो लॉस है, फिर व्हाई वी नीड टू टाइप्स? ऑब्वियसली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड टू टाइप्स। पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं। नॉर्मल लॉस is that loss which occurs normally. Normal loss is that loss which occurs normally. Abnormal loss is that loss which is not normal. क्या मजाक कर रहे हैं सर सवेरे सवेरे बुला के? नॉर्मल लॉस क्या है? तो जो नॉर्मल ही होता है। एबनॉर्मल लॉस क्या है? जो नॉर्मल नहीं है। ये क्या बात है? कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ना कोई टाइम पास कर रहा हूं, यही डेफिनेशन है। नॉर्मल लॉस इज दैट लॉस विच ऑकर्स नॉर्मली का मतलब सच लॉस विच इज गोइंग टू हैपन इन नॉर्मल कोर्स, यू कांट अवॉइड इट। तुम अवॉइड नहीं कर सकते उसको, वो लॉस होके रहेगा, वो लॉस होके रहेगा, यू कांट अवॉइड दैट लॉस। अनअवॉइडेबल लॉस इज कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस। सिंपल एग्जांपल्स दे नॉर्मल लॉस के तो इवोपरेशन ऑफ पेट्रोल, इवोपरेशन ऑफ केरोसिन, केरोसिन का इवोपरेशन, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट फॉर दैट मैटर, एनी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, केरोसिन ले लो, रॉकेल, ऑल दीज आर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। इनका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है दैट इफ यू कीप इट ओपन टू एयर इट गेट्स इवोपरेटेड, इवोपरेट हो जाते हो। प्रोडक्ट का नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है ना यार, उसको अपन कुछ नहीं कर सकते। When a tanker comes from the oil depot to the petrol pump, in between रास्ते में इवोपरेशन होके कुछ लॉस होना कॉमन बात है, यू कांट अवॉइड दैट, वो तुम अवॉइड नहीं कर सकते। इवन हम जब 2 व्हीलर 4 व्हीलर में पेट्रोल फिलअप करते हैं अपने गाड़ी में, तो जब वो पेट्रोल भरा जाता है गाड़ी में, पेट्रोल के टैंक में, यू कैन सी कि एक वेरी नॉमिनल क्वांटिटी, बहुत नॉमिनल रहता है वो, बट इट गेट्स इवोपरेटेड। होता ही है ना, तो दिखता भी है ना, आंखों से दिखता है ना, अगर गौर से देखो तो इट गेट्स इवोपरेटेड। कैन यू अवॉइड दैट? बहुत महंगा हो गया, डोंट गेट इवोपरेटेड, नेचुरल, यू कांट अवॉइड दैट लॉस। नॉर्मल है वो होके रहेगा, इट इज बाउंड टू हैपन। डैम में पानी रिजर्व करते हैं, डैम में, डैम, वाटर डैम, राइट? घूमने गए रहेंगे ना खड़कवासला डैम के उधर, राइट? नहीं गए? फिर क्या कर रहे हैं पुणे में आके, राइट? पढ़ाई कर रहे हो, हाँ, राइट? जाओ फिर घूमने एग्जाम होने के बाद। सो डैम के वहां जाओगे तो तुम देखोगे कि पानी रिजर्व करके रखा हुआ रहता है, अड़ा के पानी को, राइट? ऑब्स्टेकल्स डाल के डैम के फॉर्म में पानी रिजर्व करके रखते। बिकॉज ऑफ हीट द वाटर गेट्स इवोपरेटेड। उसको रोक सकते क्या तुम? नहीं रोक सकते उसको। क्या करेंगे? ताड़पत्री डालेंगे डैम के ऊपर पूरी? ऐसे तो कुछ होने से रहा, इट इज गोइंग टू गेट इवोपरेटेड कंपल्सरीली। अभी वो नेचुरल है भाई, सन का हीट जब आएगा, सूरज की किरणें आएगी तो वो इवोपरेट होना ही है, और डैम का फिर ऑटोमेटिकली लेवल जो है वो नीचे जाएगा इवोपरेशन की वजह से, राइट?
एंड देयरफॉर सच लॉसेस यू कांट अवॉइड, नॉर्मल कोर्स में लॉस होने वाले. कन्वर्जन ऑफ सीमेंट बैग इनटू स्टोन, सीमेंट की बैग होती है सीमेंट. अगर कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए हो तो तुम देखे रहेंगे कि कहीं तो भी ऐसा ना एकदम ऐसा पत्थर का गोला बने हुए रहता सीमेंट की बैग का, राइट. सीमेंट का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है उस प्रोडक्ट का कि इफ इट इज केप्ट इन ह्यूमिड वेदर, थोड़ा सा भी उसने अगर ये कैच कर लिया मॉइस्चर, थोड़ा सा भी उसको पानी लग गया, इट टर्न्स इनटू स्टोन. उसको फोड़ के वापस सीमेंट बनता क्या? कुछ नहीं. उसका बाद में सिर्फ सिंहासन बोल के यूज हो सकता है. थक गए थोड़ी देर बैठना है तो है तो बैठ जाओ इसके ऊपर, राइट. बाकी उसका कोई यूज नहीं. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टोन, पत्थर बन जाता है वो. नेचुरल है. कोयला, कोयला नॉर्मल फॉर्म उसका कौन सा है? सॉलिड फॉर्म है ना. इट इज सॉलिड. तुम कुछ दिन उसको ऐसे ही रखो बिना डिस्टर्ब किए, इट टर्न्स इनटू डस्ट. कोळशाचा भुगा म्हणतो ना आपण, राख होते, राख ऐश में कन्वर्ट हो जाता है वो. इफ यू डोंट डिस्टर्ब इट एंड कीप इट एज इट इज, कोयले को कोल नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, तुम उसको अवॉइड नहीं कर सकते. यू कांट अवॉइड दैट. होके रहेगा वो लॉस. कश्मीर से एप्पल्स मंगाए अपने पास, कश्मीर में हिमाचल प्रदेश में एप्पल्स आते हैं. उधर का एटमॉस्फेयर बेसिकली सुटेबल है एप्पल्स के लिए, तो एप्पल्स के गार्डन से उधर से, तो वहां से एप्पल्स पूरे इंडिया में सप्लाई होते. अब पुणे में समझो मैंने डिसाइड किया कि चलो अभी टीचिंग बहुत हो गया, अभी मैं एक फ्रूट मार्ट स्टार्ट करता हूँ, फ्रूट का स्टॉल लगाऊंगा प्रेस्टीज पॉइंट में नीचे, राइट. एक्सपोर्ट फ्रूट स्टॉल, राइट. एग्जाम होने के बाद आना आप लोग भी खाने. सो मैंने कश्मीर से एप्पल्स ऑर्डर किए, कोकण से मैंगो ऑर्डर किए, राइट. हापुस आम, ये मौसम में कहाँ आम के याद दिला रहे बोलना. आम, एप्पल, ये ऐसी चीजें, ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है ना रे. रास्ते में इनका लॉस होना ही होना है. आम का तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक तुम जानते हो कि एक आम खराब रहेगा तो बाकी आम को भी खराब करता है, इजंट इट. एप्पल से अभी तुमने 1000 kg के एप्पल्स ऑर्डर किए, कश्मीर से आ रहे 1000 kg, भेजने वाले ने 1000 kg भेजे, बट आते आते 3-4 दिन 4-5 दिन जो भी टाइम ट्रांसपोर्टेशन में जाने वाला है, उस दौरान कुछ ना कुछ एक लॉस क्वांटिटी होने ही वाला है तुम्हारा लॉस. तुम अवॉइड नहीं कर सकते उसको, क्योंकि तो प्रोडक्ट ही वैसा है. इंपोर्टेड फ्रूट्स मंगाते हैं अपन, इंपोर्टेड बाहर से. कोई भी फ्रूट रहा, कितना भी प्रिजर्वेटिव में रखा, कुछ भी किया, कोल्ड स्टोरेज में रखा, तो अल्टीमेटली पेरिशेबल है ना. तो कुछ ना कुछ लॉस तो होने वाला है, और ये ऐसा लॉस है यू कांट अवॉइड नहीं कर सकते. सो सच अनअवॉइडेबल लॉस इज कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस. सच अनअवॉइडेबल लॉस इज कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस. जैसे ओरिजिनली शेड्यूल क्या है, सवेरे 9 से 10:30 मैथ्स का क्लास है, 10:30 से 12:30 अकाउंट्स का क्लास है, बराबर है. शेड्यूल तो यही है, बट हमने क्या कर दिया पहले ही दिन हमने क्या किया, 9 से 10:30 अकाउंट्स मैथ्स का क्लास होने के बाद 10:30 बजे अकाउंट्स शुरू करने के बजाय मैंने पहले ही दिन आपको बोल दिया कि वी विल स्टार्ट एट 10:45. 15 मिनट का नॉर्मल लॉस है ये. कुछ नहीं कर सकता इसको, ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हैं. विनोद सर मैथ्स का लेक्चर 10:30 बजे खत्म होगा, सर उनका लेक्चर बंद करेंगे, वीडियो सेव करेंगे, रिकॉर्डिंग चालू है तो वो सेव होगा कि नहीं वो चेक करेंगे. 2-4 मिनट 5 मिनट उसमें जाने ही जाने हैं. उसके बाद में 1.5 घंटे से तुम बैठे हो, तुम भी 2 मिनट का ब्रेक लोगे, 5 मिनट का ब्रेक लोगे. मैं आऊंगा, मेरा आके पूरा सेटअप लगाऊंगा, मेरा लेक्चर का रिकॉर्डिंग में पूरा देखूंगा स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, नई मीटिंग क्रिएट होगी ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए. टाइम तो लगने वाला ना इसमें. कैन वी अवॉइड दैट? नहीं अवॉइड कर सकते. एंड देयरफॉर दैट इज नॉर्मल लॉस. और इसीलिए मैंने पहले ही दिन आपका टाइमिंग चेंज कर दिया था. भले ओरिजिनली एज पर टाइम टेबल देखोगे तो टाइमिंग अपना 10:30 to 12:30 है, बट आई सेड नो, वी विल पोस्टपोन इट बाय 15 मिनट्स. तुम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, बीच में ब्रेक मिल जाता है 5-10 मिनट का. वी विल स्टार्ट एट 10:45. तो ये अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग, वी कांट अवॉइड दिस. एज अगेंस्ट इट, व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या? जो नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल है. अब नॉर्मल के लिए मैंने क्या बोला, इट कांट बी अवॉइडेड. इसका मतलब यह है कि एबनॉर्मल लॉसेस आर दोज लॉसेस व्हिच कैन बी अवॉइडेड, जो अवॉइड हो सकते, दोज आर एबनॉर्मल लॉसेस. लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट. अब आप बोलोगे सर लॉस ड्यू टू फायर ये कैसे अवॉइड होता? सर आ गए, कभी भी कहीं पे भी लग सकती है, उसके अगेंस्ट में प्रोविजन हो सकता है ना रे. फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स तुम लगा सकते हो, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा सकते हो, isn't it? तो you can get protected against the
रिस्क ऑफ फायर, और कुछ नहीं समझो लॉस हुआ भी, इंश्योरेंस होता है ना, इट इज इंश्योरेबल लॉस। अनसर्टन लॉस है तो उसका इंश्योरेंस होता है। नॉर्मल लॉस सर्टन लॉस है बेटा, नॉर्मल लॉस का कभी इंश्योरेंस नहीं होता। जो लॉस कंफर्म है उसका इंश्योरेंस कौन देगा? जो कंफर्म लॉस है उसका इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देगा। पुट योर सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड समझो कि तुम्हारे पास एक कोई इंसान आया है और वो बोलता है कि उसको उसके लाइफ पे लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। आप इंश्योरेंस कंपनी हो एंड आपको बोल रहा है कि मेरा कैंसर का लास्ट स्टेज है, 4th स्टेज है, और मेरे को इंश्योरेंस कवर चाहिए। देंगे तुम इंश्योरेंस कवर? अरे जहां सर्टन है लॉस, डॉक्टर ने बोला कि 15 दिन बड़े मुश्किल से निकलेंगे, कैसे इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देगा ऐसे इंसान को? उस मोमेंट पे देगा क्या? जहां सर्टन लॉस है ना बेटा, उसका इंश्योरेंस कभी नहीं होता। तो नॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस नहीं होता, बट एबनॉर्मल लॉस अनसर्टन है ना, आग लग सकती है, लग सकती है, कंफर्म है क्या लगेंगी? चोरी हो सकती है, कंफर्म है क्या होगी? नहीं ना, अनसर्टन है ना। सच लॉसेस कैन बी अवॉइडेड, एटलीस्ट द रिस्क कैन बी इंश्योर्ड। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, अभी ये बोला कि बच्चे वापस बोलते कुछ भी बोल रहे सर, अर्थक्वेक थोड़ी अवॉइड होता। अर्थक्वेक अवॉइड नहीं होता भाई, बट उसकी वजह से होने वाले लॉस को तो मैं इंश्योरेंस करा सकता हूं ना, उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस निकलता है ना, इजंट इट? सो ऑल दीज इंश्योरेबल अनसर्टन लॉसेस आर कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस। अपने क्लास का एग्जांपल दे तो आज जैसे अपन ने क्लास अपना सवेरे 9 बजे था, आज मैंने प्रीपोन किया अकाउंट्स का लेक्चर। पहला लेक्चर तो 9 बजे स्टार्ट हो सकता है ना, फर्स्ट लेक्चर है, उसके पहले तो कोई सेटअप करना है नहीं, आपको भी कोई बीच में ब्रेक की जरूरत है नहीं कि तो पहला लेक्चर है। पहला लेक्चर अगर लेट स्टार्ट हो रहा है तो दैट इज एबनॉर्मल लॉस। ध्यान में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूं? If first lecture instead of 9 o'clock, if it is starting at 9:10, that 10 minutes loss is abnormal loss which can be avoided. सेकेंड लेक्चर 10:30 का है, वो 10:30 बजे स्टार्ट नहीं हो सकता, 15 मिनट आगे जा रहा है, दैट इज नॉर्मल लॉस, वो अवॉइड नहीं हो सकता वो लॉस, वो 15 मिनट का फर्क। ध्यान में आ रहा है क्या तुमको? क्यों? तो पहला लेक्चर है तो उसके पहले तुमको ब्रेक की जरूरत नहीं, उसके पहले सेटअप जो भी करना है वो मैं पहले आके 5 मिनट पहले आके कर सकता हूं, तो लेक्चर कैन स्टार्ट एट 9 o'clock। तो अगर यहां पे पहले लेक्चर स्टार्ट होने में डिले हो रहा है तो दैट इज abnormal loss because it could have been avoided. हाँ, delay in starting of immediate next lecture, that is normal loss. वो normal loss उसको avoid नहीं कर सकते हम लोग। I hope the concept is clear. So normal loss is certain loss, abnormal loss is uncertain loss, normal loss is non-insurable loss, abnormal loss is insurable loss. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्यों डिस्कस कर रही है हम, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, मैंने सिंपल इसका आंसर दे दिया है आपको कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफर्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग है दोनों के लिए। नॉर्मल लॉस इज कंसिडर्ड एज कंसाइनमेंट लॉस, इट इज अकाउंटेड एज लॉस ऑफ कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के प्रॉफिट के अगेंस्ट में वो लॉस एडजस्ट किया जाता है। एबनॉर्मल लॉस इज नॉट अ कंसाइनमेंट लॉस. Abnormal loss is a general loss of the consignor. It should not be adjusted against consignment profits. So abnormal loss is not, I am repeating, abnormal loss is not a consignment loss. It is a general loss. जनरल लॉस है कंसाइनर का, कंसाइनमेंट का लॉस नहीं माना जाएगा, वो कंसाइनमेंट के प्रॉफिट के अगेंस्ट में वो एडजस्ट नहीं होगा। और इसलिए ये दो टाइप के लॉसेस समझने जरूरी है, क्योंकि तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही अलग अलग है। नॉर्मल लॉस बोला तो कंसाइनमेंट का लॉस, एबनॉर्मल लॉस बोला तो जनरल लॉस, इट इज नॉट अ कंसाइनमेंट लॉस। तो कैसे एंट्रीज पास होंगे, क्या होंगे देखते, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखो, abnormal loss is avoidable and controllable loss, avoidable and controllable loss
It is uncertain loss. It is uncertain loss which can be insured. Which can be insured. Full stop. Examples of such loss. Examples of such loss are loss due to fire, comma, loss due to theft, comma, loss due to accidents, etc. etc. Full stop. Such, next line, such losses are treated as general losses and not the losses on consignment, full stop. Being general loss, following accounting entries are passed for abnormal loss. For recording abnormal loss, the entry will be abnormal loss account debit to consignment account. Abnormal loss account debit to consignment account.
तुम एक बार लिख लो, फिर मैं सारे एंट्रीज समझाऊंगा आपको अच्छे से। नंबर 2, फॉर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड against the abnormal loss, bank account debit to एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। जितना इंश्योरेंस क्लेम मिला उतने से मेरा एबनॉर्मल लॉस कम हो जाएगा ना। पहले एंट्री में मैंने एबनॉर्मल लॉस को डेबिट कर दिया, पूरा लॉस जो था वो। दूसरे एंट्री में मैंने जितना क्लेम मिला उतना एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, पूरा इंश्योरेंस क्लेम मिलता क्या? नहीं। तो अब जो भी नेट लॉस बचेगा आफ्टर इंश्योरेंस क्लेम, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। यस, फॉर ट्रांसफर ऑफ net abnormal loss बोलो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। P&L में नहीं, ये कंसाइनमेंट में नहीं जाएगा, इट इज नॉट कंसाइनमेंट लॉस, एंड देयरफॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट लिख दिए। अब आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देना है। डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन। ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंट है। सपोज 100 बॉक्सेस आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 100 बॉक्सेस भेजे कंसाइनमेंट पे, क्या एंट्री पास करते हैं आप? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने बॉक्सेस? 100 बॉक्सेस का कॉस्ट यहां पे आ जाएगा बेटा। आईपी पे भी भेजिए तो लोडिंग रिवर्स करके अल्टीमेटली कॉस्ट पे आता है ना। तो बेसिकली 100 बॉक्सेस का कॉस्ट डेबिट में आ गया। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में जितने बॉक्सेस भेजे उसका कॉस्ट आ गया। तो अपने एग्जांपल में मैं बोल रहा हूं 100 बॉक्सेस भेजे, तो 100 बॉक्सेस का कॉस्ट डेबिट हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट को। अब इसमें से ना 10 बॉक्सेस का लॉस हो गया, 10 बॉक्सेस का लॉस हुआ, और जो लॉस हुआ 10 बॉक्सेस का वो एबनॉर्मल लॉस है। इट इज एबनॉर्मल लॉस। तो कितने बॉक्सेस बच गए? 90 बॉक्सेस। बोल तो कंसाइनी कितने बॉक्सेस बेचेगा? 90 बेचेगा। 2 मिनट के लिए मान लेते कि उसने पूरे बेच दिए, स्टॉक कुछ नहीं बचा है समझो, तो कितने बेचेगा वो? बाय कंसाइनी अकाउंट 90 बॉक्सेस का सेल्स वैल्यू आएगा यहां पे, बराबर ना। ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे ना सेल्स। तो 10 बॉक्सेस जो है 100 भेजे, 90 बेच दिए, जो 10 है उनका लॉस हो चुका है, लॉस। और वो मैं बोल रहा हूं एबनॉर्मल लॉस है, इट इज एबनॉर्मल लॉस। अब 2 मिनट के लिए मान लो कि मैं एबनॉर्मल लॉस का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे नहीं रहा हूं। आई एम नॉट गिविंग एनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एबनॉर्मल लॉस। जो लॉस हुआ है उसका ट्रीटमेंट मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। तो मेरे को बताओ बेटा क्या होगा जब मैं बैलेंसिंग फिगर लूंगा यहां पे प्रॉफिट की। कंसाइनमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एंट्री पास करता है ना,
तो उस केस में क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीन पे अच्छे से ध्यान दो। 90 बॉक्सेस के सेल्स वैल्यू के अगेंस्ट में कितने बॉक्सेस का कॉस्ट एडजस्ट हो रहा है? 100 बॉक्सेस का हो रहा है ना रे। बोलते जो 10 बॉक्सेस का लॉस हुआ है वो कॉस्ट भी तो अकाउंट फॉर हो रहा है ना यहाँ पे। तो जो प्रॉफिट आएगा वो 10 बॉक्सेस का कॉस्ट लेस होके फिर आएगा। समझ में आ रहा है क्या? जबकि मैंने तो अपोजिट लिखा के दिया है। मैंने लिखा के दिया एबनॉर्मल लॉस इज नॉट अ कंसाइनमेंट लॉस, वो कंसाइनमेंट का लॉस नहीं है। और अगर वो कंसाइनमेंट का लॉस नहीं है तो वो कंसाइनमेंट के प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट भी नहीं होना चाहिए फिर। दैट इज द रीजन फर्स्ट एंट्री इज पास्ट। क्या लिखी पहली एंट्री? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू, सो बाय एबनॉर्मल लॉस कितने बॉक्सेस? और मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज पे समझाने की जरूरत है कि लॉस हमेशा कॉस्ट पे आएगा। लॉस तो कॉस्ट पे अकाउंट फॉर होगा ना। तो पहली एंट्री जो पास की, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट में एबनॉर्मल लॉस लिया। अब इसका फायदा क्या हुआ? अब इन दोनों को जब मैं नेट आउट करूंगा तो कितने बॉक्सेस का कॉस्ट आया बेटा डेबिट में? 90 बॉक्सेस का रहेगा ना रे। डेबिट में 100 बॉक्सेस, क्रेडिट में 10 बॉक्सेस का कॉस्ट रिवर्स हो गया ना। तो नेट इफेक्ट क्या है? 90 बॉक्सेस का कॉस्ट। अब नेट इफेक्ट 90 बॉक्सेस का कॉस्ट डेबिट में आया हुआ है, क्रेडिट में 90 बॉक्सेस का सेल्स आया हुआ है, बराबर प्रॉफिट आ जाएगा 90 बॉक्सेस का। कराला का? देखो बेटा, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, 3 ही एंट्री है। रट्टा मराने को मेरे को टाइम नहीं लगेगा। 2 मिनट में 4-5 बार बुलवा लूंगा ना तो रट जाएंगे एंट्रीज। कोई फायदा नहीं रट्टा मार के। दिमाग में जाना पड़ेगा कि कर क्यों रही है, क्यों एंट्री पास की एबनॉर्मल लॉस की ऐसी। यही सेम लॉजिक फाइनल अकाउंट्स में भी लगता है। 11 स्टैंडर्ड में सबने सीखा, मान सबको आता है, लॉजिक किसी को पता नहीं। गुड्स लॉस्ट बाय फायर 5,000 रुपीज, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 4,000 रुपीज, ये आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहता था। क्या करते थे आप? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर 5,000, बैलेंस शीट के एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 4,000, नेट 1,000 P&L के डेबिट में। यही कर रहा हूं मैं भी। एंट्री में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ P&L की जगह, ट्रेडिंग की जगह यहां कंसाइनमेंट अकाउंट है। लेकिन लॉजिक समझना ज्यादा जरूरी है कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट क्यों किया? तो जब गुड्स कंसाइनमेंट पे भेजे थे तो उस टाइम पे उसकी कॉस्ट ऑलरेडी डेबिट हो गई ना कंसाइनमेंट अकाउंट को। लेकिन अगर दीज गुड्स आर लॉस्ट एबनॉर्मली, देन दैट एबनॉर्मल लॉस इज नॉट अ कंसाइनमेंट लॉस एंड देयरफॉर दैट कॉस्ट नीड्स टू बी रिवर्स्ड। एंड वो रिवर्सल के लिए पहली एंट्री क्या पास हुई? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। पहली एंट्री का लॉजिक समझा क्या? पक्का? श्योर? दूसरी एंट्री सिंपल है। इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, इंश्योरेंस क्लेम मिला तो उतने से मेरा लॉस रिकवर हो गया। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एंड आप सब लोग जानते हो कि इंश्योरेंस क्लेम पूरा नहीं मिलते रहता, तो नेट जो भी लॉस बचेगा दैट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट वोंट गो टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट का लॉस है ही नहीं, कहां जाएगा वो? P&L अकाउंट ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के P&L में जाएगा डायरेक्टली, कंसाइनमेंट में एडजस्ट नहीं होगा। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस 3 एंट्रीज। एनी प्रॉब्लम? चलो बोलो एंट्रीज। फॉर रिकॉर्डिंग एबनॉर्मल लॉस व्हाट इज द एंट्री? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एंड देन नेट लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एनी प्रॉब्लम? 100% क्लियर है? श्योर? ऑनलाइन गाइज, इज दैट क्लियर? चैट बॉक्स में लिखो, कुछ डाउट है तो पूछो। सब सो गए क्या? जग रहे आ गए मेरे से। यस, तो ये 3 एंट्रीज है, याद रखना। नेक्स्ट लाइन लिखो। Valuation of abnormal loss, valuation of abnormal loss
is summarized as under. Is summarized as under. अब सब लोग लास्ट लेक्चर के डिस्टिंक्शन में जाओ, लास्ट लेक्चर के रिकरिंग नॉन रिकरिंग वाला था ना, उसमें जाओ और उसमें का 5th पॉइंट पढ़ो। 5th, recurring expenses are not considered in valuation of abnormal loss, whereas non-recurring expenses are added proportionately to the value of abnormal loss. ठीक है, बोल, डाउट है? नोट्स चाहिए मतलब क्वेश्चन पेपर? कौन सा पेपर? तो नहीं ले रहा मैं, ऑफिस से ले ले। हाँ, क्या सीखा हमने? 5th पॉइंट में क्या लिखा था? रिकरिंग एक्सपेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड इन वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, वेराज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, प्रोपोर्शनेटली ऐड किया जाता है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वो कॉस्ट ही है ना अपने लिए, तो वो गुड्स के वैल्यू में ऐड करना है अपने को एबनॉर्मल लॉस के। अब उसके लिए ना एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट अपने को समझना होगा। वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। बेटा एबनॉर्मल लॉस कहां हुआ है उसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा ना कि कैसे इसका वैल्यूएशन करेंगे। मतलब बोलने का मतलब ये है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेटली मेरे को ऐड करने हैं, और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस तो दोनों पे करते हैं, कंसाइनर भी कंसाइनी भी। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर द लॉस हैज ऑकर्ड। लॉस हुआ कहां है वो देखना बहुत जरूरी है। दो पॉसिबिलिटीज है, when abnormal loss occurs की स्पेलिंग में OCCURS, when abnormal loss occurs during transit, that is before the goods reach consignee's place. When abnormal loss occurs during transit, that is before the goods reach consignee's place. दूसरी पॉसिबिलिटी, when abnormal loss occurs after the goods reach consignee's गोडाउन या प्लेस, जो भी लिखो। लिखा?
दो पॉसिबिलिटीज है, या तो रास्ते में ही लॉस हो गया, जब कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजे रास्ते में लॉस हो गया। अब मेरे को बताओ बेटा, रास्ते में लॉस हो गया तो वो गुड्स तो कंसाइनी को मिलेंगे ही नहीं ना, तो रास्ते में लॉस हो गया। 1000 लीटर पेट्रोल निकला था लेके टैंकर, 1000 लीटर, वैसे बहुत कम होता है 1000 लीटर एक टैंकर में, वो ठीक है। 1000 लीटर पेट्रोल लेके टैंकर निकला, पेट्रोल पंप पहुंचते पहुंचते 950 लीटर ही बचा है, तो 50 लीटर तो मिला ही नहीं ना, 950 पहुंचा ना, तो रास्ते में लॉस हो गया। तो व्हेन लॉस ऑकर्स ड्यूरिंग ट्रांजिट, दैट इज बिफोर द गुड्स रीच कंसाइनीज प्लेस। दूसरी पॉसिबिलिटी है, कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स आ गए, उसके बाद आग लग गई, फिर नुकसान हो गया। तो दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर द गुड्स विल बी लॉस्ट एबनॉर्मली व्हेन द गुड्स आर इन ट्रांजिट, और आफ्टर द गुड्स रीच कंसाइनीज गोडाउन। क्यों ऐसे डिवाइड कर रहे हो मेरे को बताओ, थोड़ा सा लॉजिक तो आपको लग गया रहेगा कि ऐसा क्यों डिवाइड किया दो सिचुएशन में। पहले सिचुएशन में कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचे ही नहीं ना रे, तो ये एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी के पास गुड्स आने के पहले हो गया, तो कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आएंगे क्या इधर? आएंगे ही नहीं, क्यों? तो गुड्स उसके तक पहुंचे ही नहीं। उधर कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कंसीडर करने पड़ेंगे, क्यों? उसने रिसीव करने के बाद नुकसान हुआ है, रिसीव करते होने वाले खर्चे को नॉन रिकरिंग बोलते कंसाइनी के, कहते हैं का। तो यहां पे वैल्यूएशन कैसे करेंगे बताओ? कॉस्ट प्लस proportionate non-recurring expenses of consignor only. Cost plus proportionate non-recurring expenses of consignor only, क्यों? तो कंसाइनी कोई गुड्स मिले ही नहीं, पहले लॉस हो गया, तो कंसाइनी के खर्चे आए नहीं उसके ऊपर। और वही अगर मैं सेकंड सिचुएशन में जाऊं तो कॉस्ट प्लस proportionate non-recurring expenses of consignor as well as consignee. आया? तो लॉस कहां हो रहा है ये देखना बहुत जरूरी है, इन ट्रांजिट हो रहा है या कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने के बाद हो रहा है, तो वैल्यूएशन ही बदल जाएगा। अगर ट्रांजिट में हो रहा है तो सिर्फ कंसाइनर के खर्चे ऐड करेंगे, अगर कंसाइनी के गोडाउन में लॉस हुआ है तो देन कंसाइनर प्लस कंसाइनी दोनों के एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ेंगे। सो वेयर द लॉस इज ऑकरिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इज दिस क्लियर? क्विकली एक बार तीनों एंट्रीज बताओ। फॉर रिकॉर्डिंग एबनॉर्मल लॉस, व्हाट इज द एंट्री? abnormal loss account debit to consignment account. Then recovery of insurance claim, bank account debit to abnormal loss account, and net abnormal loss won't be debited to consignment account, it will be treated as general loss and debited to profit and loss account. Entry will be profit and loss account debit to abnormal loss account. Any problem guys? Everybody understood? सबको समझा? पक्का? Yes. प्रॉब्लम नंबर 1, पहले अपन एबनॉर्मल लॉस के प्रॉब्लम्स ले लेते, फिर नॉर्मल लॉस में जाएंगे अपन बाद में। फर्स्ट प्रॉब्लम, Shikha of Delhi consigned to Rima of Mumbai goods to be sold at IP
which represents 125% of cost. Rima is entitled to a commission of 10% on sales at IP and 25% of any excess realized over IP. Expenses on freight and insurance incurred by Shikha were 45,000. The account sale received by Shikha shows that Rima has effected sales amounting to 4,50,000 in respect of 75% of the consignment. Her selling expenses to be reimbursed were 36,000. 10% of consignment goods of the value of 56 to 50 were destroyed in fire at Mumbai Godown. Rima remitted the balance in favor of Shikha. You are required to prepare consignment account in the books of Shikha along with the necessary calculations. कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने को बोला है शिखा के बुक्स में, कंसाइनर के बुक्स में. Problem number first, page number 12. In the books of Shikha, consignment account. More than half page. ऐसे प्रॉब्लम में बोला नहीं है, बट प्रैक्टिस के लिए कंसाइनी का अकाउंट बनाना है तो बना सकते हैं अपन. बनाए क्या? रीमा अकाउंट. जस्ट फॉर 6-7 लाइन्स.
Ready? I'll start. Yes. Shikha of Delhi consigned to Rima of Mumbai goods to be sold at IP, which represents 125% of cost. Guys, IP is 125% of cost. Means loading is 25% of cost. And when loading is 25%, मतलब 1/4 of cost, it is 1/5 of IP. तो पहले तो ये क्लियर दिमाग में रख लो, लोडिंग इज 1/4 ऑफ कॉस्ट. तो अगर कॉस्ट के साथ लोडिंग लेना है तो 1/4, एंड एट द सेम टाइम इट इज 1/5 ऑफ आईपी. अब ये क्यों 1/4 और 1/5 अब नहीं समझाने वाला मैं. ये रिवीजन बैच होते हुए भी मैंने बहुत डिटेल में स्टार्ट में सिखाया. ये लिटरली एलकेजी यूकेजी को सिखाते वैसे, राइट. सो 1/4 ऑफ कॉस्ट इज 1/5 ऑफ आईपी. तो अपन लोडिंग कौन से वैल्यू पे ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि 1/4 लेना है या 1/5 लेना है. अगर कॉस्ट पे ले रहे हो तो 1/4 लेना है, और आईपी पे ले रहे हो तो 1/5 लेना है. क्लियर है? रीमा इज एंटाइटल टू अ कमीशन. कमीशन तो बाद में आएगा एंड में. एक्सपेंसेस वो भी बाद में. अब मजे की बात यह है बेटा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डीएच नहीं. पढ़ो ना प्रॉब्लम में. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ही नहीं दिया है. कितने वैल्यू के? नहीं दिए बोल तो इनडायरेक्टली दिए. लास्ट सेंटेंस ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड लास्ट सेंटेंस, 10% of consignment goods of the value of 56,250 were destroyed in fire at मुंबई गोडाउन. कंसाइने के गोडाउन में टोटल गुड्स के 10% गुड्स जिनकी वैल्यू 56,250 थी आर डिस्ट्रॉयड. इसका मतलब ये है कि 10% वैल्यू 56,250 है गुड्स भेजे उसकी. तो फिर 100% वैल्यू कितनी है? 560 to 500. व्हाट इज द एंट्री फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. लिखो. जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूं ब्रैकेट में. 56,250 डिवाइडेड बाय 10%, ये 10% वैल्यू है. तो 100% वैल्यू कितनी होगी? 560 to 500. करेक्ट है? बट ये तो आईपी है. गुड्स आर सेंट एट आईपी. तो ये आईपी होगी 560 to 500. फर्स्ट टेल मी द एंट्री फॉर रिवर्सल ऑफ लोडिंग. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट बाय goods sent on consignment bracket loading at the rate of 20% on IP, that is rupees 560 to 500. 1/5 बोलते 20%. तो 560 to 500 आईपी है, उसका 1/5 लोडिंग है. करो कैलकुलेट. 1 लाख पक्का. 112,500 आया. कैलकुलेशन समझे सबको? Expenses on freight and insurance incurred by Shikha were 45,000. कंसाइनर ने 45,000 के एक्सपेंसेस पे किए. एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट.
bracket freight and insurance. बताओ. 45,000. The account sale received by Shikha shows that Rima has effected sales amounting to 4,50,000 in respect of 75% of the consignment. 75% गुड्स बेच दिए 4,50,000 में. एंट्री सेल ऑफ गुड्स है, इनकम है तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट होगा. क्या कर रहे, कंसाइनी ने गुड्स बेचे, क्या एंट्री होगी, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रीमा अकाउंट. Sale of 75% of the goods. कितने में बेचे, 4,50,000. We have Rima account. To consignment account 4,50,000. 4,50,000 आया. Then it is given her selling expenses to be reimbursed for 36,000. रीमा के selling expenses 36,000 है. Entry for expenses paid by रीमा. Consignment account debit to रीमा account. To रीमा account. कितने रे सेलिंग एक्सपेंसेस, 36,000. रीमा क्रेडिट साइड बाय $36,000 आया. 10% of consignment goods of the value of 56,250 were destroyed in fire at Mumbai godown. रीमा remitted the balance. बाद में रीमा remitted the balance. 10% गुड्स का लॉस हुआ है गोडाउन में. ये abnormal लॉस है ड्यू टू फायर है. देखो were destroyed in fire at मुंबई गोडाउन. तो अभी कहाँ हुआ है लॉस, मुंबई गोडाउन. बोल तो कंसाइनी के पास गुड्स आने के बाद ना, तो वैल्यूएशन करते हो कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस भी लेने पड़ेंगे. वो बात अलग है कि इस प्रॉब्लम में कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं है, बट अगर रहते तो लेने पड़ते ना अपने को वो भी. क्यों, तो लॉस कहां हुआ है, कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है. तो कंसाइनी के भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इसमें ऐड होने चाहिए, प्रोवाइडेड अगर है तो. नहीं है तो जीरो, बट अगर है तो लेने पड़ते. क्यों, तो कंसाइनी को गुड्स मिलने के बाद लॉस हुआ है. वर्किंग नोट. Valuation of मेरे को बताओ बेटा कि लॉस हमेशा कौन से वैल्यू पे लेते हैं हम, ऑब्वियसली कॉस्ट पे. राइट हैंड साइड कॉर्नर रुपीज. कॉस्ट ऑफ goods lost
by fire, cost of goods lost by fire. Can I take 56,250? 56,250 is not cost. 56,250 is IP. 56,250 क्या है? IP है, कंसाइनमेंट वैल्यू है वो. कंसाइनमेंट वैल्यू बोलता है IP है वो, तो मेरे को उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो IP अगर वो है 56,250 तो उसमें से लोडिंग लेस करना पड़ेगा. मैं एक काम करता हूं, ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा देता हूं. रुपीज 56,250 माइनस लोडिंग एट द रेट ऑफ 20% ऑन IP, ऐसे लिखो, वो तो कंफ्यूजन नहीं होगा. तो 56,250 IP है, कितना आएगा? 45,000. ये कॉस्ट आया, बराबर. एड proportionate non-recurring expenses, add proportionate non-recurring expenses consignors expenses कितने खर्चे है उसके? 40, 10% लेंगे क्यों? तो 10% का लॉस हुआ है ना, तो जो गुड्स का लॉस हुआ है उनके ऊपर प्रोपोर्शनेट कर कितना आएगा एक्सपेंस? ये 4,500. समझा क्या? नंबर 2 ये लिखना, कंसाइनीज एक्सपेंसेस. कुछ नहीं है इसलिए हम नील ले रहे, अगर रहता तो हम कंसिडर करते. क्यों? तो लॉस कहां हुआ है? कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है लॉस. So it will be 4,500, and therefore value of abnormal loss is 49,500. What is the accounting entry? Abnormal loss account debit to consignment account. कंसाइनमेंट अकाउंट में आ जाओ. बाय abnormal loss account, ब्रैकेट, रेफर वर्किंग नोट नंबर 1. कितना? 49,500 आया. अब इंश्योरेंस क्लेम वगैरह कुछ दिया नहीं है प्रॉब्लम में, वैसे भी वो सारे इफेक्ट्स एबनॉर्मल लॉस एंड P&L में जाते हैं. अपने अकाउंट में तो उसका कोई इफेक्ट वैसे भी नहीं आने वाला, तो अपने लिए तो इफेक्ट दे दिया अपन ने एबनॉर्मल लॉस का जो देना था. अब कमीशन बाकी है, स्टॉक वैल्यूएशन बाकी है. कमीशन पढ़ो क्या लिखा है. रीमा इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट IP एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर IP. हर प्रॉब्लम में कुछ तो अलग अलग वर्डिंग है. तुम पिछले प्रॉब्लम में देखोगे तो 5% ऑन सेल्स था, यहां पे 10% ऑन सेल्स एट IP है. तो बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा.
तुम एज इट इज अगर दिमाग लगाओगे कि पिछले समय में ऐसा किया था, यहां ऐसे क्यों किया, कंफ्यूज हो गया, तो कोई मतलब नहीं। दो प्रॉब्लम सेम रहने जरूरी नहीं है, तो प्रॉब्लम में क्या लिखा है वो हिसाब से कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, calculation of commission payable to Rima. Calculation of commission payable to Rima. Right hand side corner rupees. Sales value of goods sold. Sales value of goods sold. कितने में बेचे गुड्स जो बेचे हो? 4 lakhs? नहीं, सेल्स वैल्यू 4,50,000 लेस IP of goods sold. टोटल IP कितना है? देखो प्रॉब्लम में टोटल IP कितना है? 560 to 500. कितने गुड्स बेचे? So 75% of rupees 560 to 500. 421,875 बराबर ना? And therefore surplus price realized. $28,125 बराबर? 28,125. Therefore commission is equal to, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको लगेगा कि सिमिलर टू लास्ट प्रॉब्लम है, नहीं, यहां पे अलग है। पढ़ो क्या है फिर से एक बार। 10% ऑन सेल्स एट IP। अब सेल्स एट IP कितने हैं ना? 4.5 लाख बोला कि गलत हो गया? अरे सेल्स एट IP बोल तो IP ऑफ गुड सोल्ड 421,875 है। मैं वही तो बोल रहा हूं, बता रहा हूं ना। सेल्स एट IP इसका मतलब जो गुड्स बेचे उसका IP। एग्जाम में भी एग्जैक्टली यहीं पे गड़बड़ होती है। पिछले सम में 5% ऑन सेल्स था, सिर्फ 5% ऑन सेल्स एट IP नहीं था। यहां पे 10% ऑन सेल्स एट IP। तो सेल्स एट IP कितने हैं? 421,875 प्लस 25% ऑन सरप्लस प्राइस कितना है? 28,125 बताओ। 42,187.5 प्लस 7031.25. So it will be 49,218.75. I'll round it off to 49,219. समझाए कैलकुलेशन? Everybody understood this calculation? Please tell me the entry for commission payable to Rima.
consignment account debit to Rima. Go to Rima account commission. बोलो कितना है? 49,219. Rima credit side by 49,219. अब क्या बच गया? बाकी सब हो गया. अब स्टॉक वैल्यूएशन बचा है वही ना, कंसाइनमेंट स्टॉक के साथ उसका स्टॉक रिजर्व आएगा ही ना. वर्किंग नोट नंबर 3. Valuation of consignment stock, right hand side corner, rupees. अब ऑब्वियसली जब आईपी पे गुड्स भेजे तो पहले वैल्यूएशन आईपी पे ही होगा एंड देन स्टॉक रिजर्व विल बी रिवर्स. सो आईपी ऑफ goods lying unsold with Rima. जो गुड्स भेजे थे उसमें से 75% बेच दिए. बचे हुए 25% में से 10% का तो लॉस भी हो चुका था, तो कितने बच गए? 15%. सो 15% ऑफ रुपीज 560 to 500. बताओ 80 84,375 84,375 रुपीज. वापिस रिपीट करता हूं, टोटल गुड्स में से 10% का तो लॉस्ट बाय फायर है, 75% बेच दिए तो 10% का लॉस और 75% का सेल, तो 85% गए. तो कितने बच गए? 15% बच गए. अपने आप को इन्वॉल्व रखो सॉल्यूशन में, सारी चीजें समझ में आएगी. 15% ऑफ 560 to 500, टोटल आईपी 560 to 500 है, उसका 15%, सो दैट इज 84,375. एड proportionate non-recurring expenses under that number 1. Consignors expenses, टोटल एक्सपेंसेस के 15% लेने पड़ेंगे, बराबर. 45,000 टोटल एक्सपेंस था कंसाइनर का, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस. 15% 7,6,750. नंबर 2, कंसाइनीज एक्सपेंसेस. है ही नहीं कंसाइनी के खर्चे, एक्सपेंसेस रहते तो जरूर ले लेते, है ही नहीं. कंसाइनीज एक्सपेंसेस नील.
50 and therefore value of consignment stock $91 $91,125. Entry for consignment stock account debit to consignment account. Go to consignment account by consignment stock account bracket refer $91,125. What is the entry for reversal of loading thereon? क्यों तो ये तो आईपी पे आया है ना. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व. टू स्टॉक रिजर्व. सब लोग मेरे पास ध्यान दो, लिखने की गड़बड़ मत करो, ध्यान दो सब लोग मेरे पास. ये जो वैल्यूएशन है, थर्ड वर्किंग नोट देखेंगे अपन. ये वैल्यूएशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आता ही नहीं. इस टॉपिक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जम जाती है, कैलकुलेशन से झिपते नहीं बाद में कि क्या किया, क्यों आया ये फिगर. टोटल वैल्यूएशन कितना आया तुम्हारे स्टॉक का? 91,125. एंड इसका सीधा सीधा ब्रेकअप तुम्हारे सामने है. 6750 के प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है एंड 84,375 का आईपी है. 84,375 का आईपी है और उसमें जो हमने 6750 ऐड किया ये प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है. बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मैं क्या बोल रहा हूं अच्छे से समझ के यहां पे देखो कि क्या हो रहा है. मेरे को बताओ, ये टोटल 91,125 ये पूरे वैल्यू में लोडिंग है क्या रे? नहीं है. पूरे वैल्यू में लोडिंग है क्या? क्यों नहीं है? तो ये 91,125 में 6750 का प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है ना. अब ये प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लोडेड है क्या? अरे वो तो एक्चुअल कॉस्ट है ना. कंसाइनर के खर्चे कितने थे? 45,000. ये 45,000 तो एक्चुअल कॉस्ट है ना. इज दैट ऑल्सो इन्फ्लेटेड? वो इन्फ्लेटेड है क्या? बोलने का मतलब ये है कि ये 91,125 के पूरे हेलो हाँ. सो 91,125 के पूरे वैल्यू में लोडिंग नहीं है, उसमें से 6750 ये एक्चुअल कॉस्ट है. तो लोडिंग किसमें है? 84,375 में लोडिंग है. तो उसके ऊपर ही लोडिंग का प्रोपोर्शन लगाना पड़ेगा ना. बाद में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बाद में डाउट पूछते हैं, अरे सर 91,125 वैल्यू है ना, फिर आपने 84,375 कैसे लिया? नीचे वर्किंग देखते ही नहीं अपन. तो थोड़ा सा समझो कि अपन क्या कर रहे हैं, कंसेप्चुअली दिमाग में जाने दो चीजें. तो 6750 जो है वो तो एक्चुअल कॉस्ट एडेड है भाई, उसमें लोडिंग है ही नहीं. लोडिंग किसमें है? 84,375 में है. तो जितना लोडिंग है उतना का रिवर्सल होगा ना. अभी 84,375 क्या है? आईपी है. आईपी का क्या प्रोपोर्शन है लोडिंग का? 20%. इट इज 25% ऑन कॉस्ट, मीन्स 20% ऑन आईपी. फिर आप मेरे को बताओ कैलकुलेट करके कि अभी कितना स्टॉक रिजर्व आने वाला है. 84,375 के 20%, 16,875 आया क्या सबका?
ऊपर आ जाओ कंसाइनमेंट अकाउंट में, स्टॉक रिजर्व ब्रैकेट 20% ऑन 84 375 था क्या? 20% on 84 375 16,875 सबका आया? सबको झेपा क्या है? क्या किया है? वो 6750 पे लोडिंग नहीं लिया हमने क्यों? तो वो एक्चुअल कॉस्ट थी, प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस. एंड नाउ क्लोज दिस अकाउंट, यू विल गेट द प्रॉफिट. और प्लीज सब लोग करो, रेडीमेड आंसर मत देखो स्क्रीन पे, मैं लिखने नहीं वाला, सब लोग करो पहले. लॉस आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है पहले देखो. 7,09,594. Balancing figure will be 6,469. 6,469 पक्का? 6,469 का लॉस आया. सबका आया क्या? फाइनल सेटलमेंट ढूंढो. रीमा का अकाउंट क्लोज करो. बाय बैंक अकाउंट asterisk mark balancing figure final settlement. कितना आया? 364,781. 364,781. All of you got it? Yes, sir. Yes. नहीं, टाइम खत्म नहीं हुआ रे, अभी 5 मिनट है ना. यस, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम गाइज. अपने को कल ये टॉपिक कंप्लीट करना है. कल नॉर्मल लॉस सीख के अभी मेरे हिसाब से टोटल 4 प्रॉब्लम बचे हैं. तो चारों प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, जिसमें से 3 तो एग्जाम प्रॉब्लम्स है. तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज टाइम है अपने पास, तो अपन फॉर्मेट टू ड्रॉ कर ही सकते हैं, बराबर ना? यस. प्रॉब्लम नंबर कोई भी एक प्रॉब्लम का फॉर्मेट. 5th प्रॉब्लम नहीं, 4th प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस दोनों एक साथ है उसमें, तो वो अपन बाद में करेंगे नॉर्मल लॉस सीख के. पहले 5th प्रॉब्लम देखते हैं. माया कंसाइंड 400 बॉक्सेस ऑफ शेविंग ब्रशेस, ईच बॉक्स कंटेनिंग 100 शेविंग ब्रशेस. Cost price of each box was 3,000. Maya spent 500 per box as cartage, freight, insurance and forwarding charges. One box was lost on the way and Maya lodged claim with insurance company and could get 2,700 as claim on average basis. Consignee took delivery of rest of the boxes and spent 199,500 as non-recurring expenses and 1,12,500 as recurring expenses. He sold 370 boxes at the rate of 65 per shaving brush. He was entitled to 2% commission on sales plus 1% del credit commission. You are required to prepare consignment account. Actually, problem है simple ही,
बट 5 मार्क के लिए जस्टिफाई नहीं होगा ये, कि तो वर्किंग भी तो करने पड़ते हैं ना. एबनॉर्मल लॉस है प्रॉब्लम में, फिर वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक भी आएगा. ये वर्किंग करना और ये सॉल्व करने में 5 मार्क के लिए 9 मिनट ही होते हैं अपने पास. 100 मार्क के लिए 180 मिनट है, तो 5 मार्क के लिए 9 मिनट में प्रॉब्लम कितना भी सिंपल रहा तो सॉल्व नहीं हो सकता 9 मिनट्स में. तो बट आया एग्जाम में 5 मार्क के लिए, तो लेंदी हो गया ये. चलो फॉर्मेट तो ड्रॉ कर लो. Problem number 5, page number 13 in the books of सिर्फ एक ही अकाउंट बोला है बनाने को. कंसाइनमेंट अकाउंट. More than half page. Only single account is asked, consignment account. Particulars rupees. Particulars rupees. Ready format? तो गाइज जैसे आज टाइम परमिट नहीं करता सॉल्व करने के लिए, तो फॉर्मेट रेडी है अपना. वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुमारो एंड रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ दिस टॉपिक प्लस नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट ये कल अपन कंप्लीट करेंगे. ये टॉपिक अपना एंड हो जाएगा. ठीक है. आज बहुत सारी चीजें डिस्कस की है. एबनॉर्मल लॉस, उसका वैल्यूएशन, एबनॉर्मल लॉस कहाँ हुआ है, इन ट्रांजिट हुआ है, कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है, उसका वैल्यूएशन कैसे होता है, सारी चीजें देखो. आज जो भी 3 सम सॉल्व हुए वो भी अलग अलग थे, कमीशन के कैलकुलेशंस अलग अलग थे. अच्छे से इतना रिवाइज करो आज का पार्ट. ठीक है. ये सब मैं कल क्लास में करा दूंगा. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.